ठीक. So today we like to discuss about the eigenvalue equation, and for this we have to know about eigenvalue and eigenfunction. For the eigenfunction, we have to understand about the wave, and the wave is, what is wave? All detailed information about the particle, like position, momentum, energy, parity, etc. All these information. So any wave can be expressed in terms of basis. So what is the basis? When we talk about the basis, so any vector A can be expressed in three-dimensional form: AXI, AYJ, AZK. Or this can also be expressed as A is equal to AX, AY, AZ, where these are A, I, J, K are known as basis. So you can rotate the basis. That is another way to discuss. Now, in case of wave, suppose this one is a wave. So this wave can be expressed as A1 psi 1 plus A2 psi 2 plus A3 psi 3 plus A4 psi 4 plus. Or sometimes it is called as summation of I is equal to 1 to n AI psi I. This is the wave. Now this wave is when we have to find the wave from wave to eigenwave. From wave to eigenwave or eigenfunction. So if we have find the probability of this wave psi and take psi star over the given space volume, and when its value is 1, this value is 1, then that psi is known as eigenwave, eigenfunction. So Sir, yes, when a wave is eigenwave or eigenfunction, when it happens if we take the probability of that wave. E is probability. Yes, sir. So probability is minus infinity to plus infinity, psi into psi star. Psi star is complex conjugate of psi. Complex conjugate of psi. So psi into psi star d gamma is 1. Then at that time, this wave is known as eigenwave. If it does not happen, then we have to normalize it. We have to normalize it. That we have discussed in previous lectures. Now, if we take the example of position, we take the example of the position operator. Position operator is express, say, capital X, and it is multiplication. It is multiplication of, multiplication by X. It is multiplication by X. And second is momentum operator. Momentum operator is P, and this is nothing but it is minus I H cross del of del X. Minus I H cross del of del X. So for the position, take the position vector, something like say this is the origin O, and here x0 is the position vector. And from this reference point, here it is another position, say A and B, and this is R. This is R.
This is R, and we can have this kind of the information X. So what is X? X is equal to X0 plus R. X0 plus R is the X. R can be written as X minus X0. X0. So in this case, this is a basis vector. This is a basis vector, and by using position vector, position operator, by using position operator, that is X, this is X of delta X minus X0, delta X minus X0. So this is X delta X minus X0. This is same X0 delta X minus X0. This is. So these numbers that is X0 or X is simple a number. This is a simple a number. And अभी मैं उस चीज को बताना नहीं चाहता या डिस्कस बहुत जाना नहीं चाहता है सिंबल्स के बारे में, जो आप जानते हैं. दिस इज ब्रॉ एंड केट नोटेशन, है ना. ब्रॉ केट नोटेशन, दैट इज the symbols. But if we using this one, if we were using this, so here it is the operator X on this kit is nothing but this is X0, and here it is X. So for the K making simple, concept and expression simple, then we use this kind of expression, and this expression are our traditional form, that is X operator into psi X is equal to X0 psi, X0 psi, the same. So these two are known as eigenvalue equation. This is known as eigenvalue equation. Eigenvalue equation. Now this X0 and X is a number. So how can identify or how can visualize this one? If you take the function, that is at that particular point, एक निश्चित बिंदु पर उसकी वैल्यू फाइनाइट है और उसके बाद 0 है. तो यहाँ पर जब हम कहते हैं ये x है और x1, ये 2 और ये 3 है, तो कोई भी फंक्शन ले लिया जाए, इसका कोई फंक्शन ले लिया जाए, तो मान लीजिए उसकी वैल्यू है, तो एक सर्टेन वैल्यू x पर ये आ गया, 1 पे ये आ गया. अब 2 पर वैल्यू क्या होगा? 2 पे जो वैल्यू होगा वो इस वैल्यू से दुगना होगा. क्यों? क्योंकि हियर x0 इज 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू ये हो गया. दिस वैल्यू इज हियर, है ना. दिस वैल्यू इज हियर 2. यदि 3 पे हम करें तो क्या होगा? फिर ये वैल्यू ये होगा 3 टाइम्स. तो ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करें कि सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई है एंड द नंबर इज x, माने x की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन भी चेंज हो रहा है, और इस तरह से जो ऑपरेटर चेंज है ना, ये ऑपरेटर चेंज है. इसके लिए 3 डायमेंशनल यदि डायग्राम से हम बात करें थोड़ा सा, तो आप देखिए, मान लीजिए किसी वजह से हम इस ऑपरेटर में i से मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें i से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? i से मल्टीप्लाई करने में ये रोटेट हो जाएगा. कितना रोटेट होगा? बाई मल्टीप्लाइंग i,
दिस विल बी, ये हमारा x है और ये जो नंबर था 1 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। हमको क्या दिखना है, i x0 डेल्टा x माइनस x0, ये फंक्शन देखना है। हमारे पास ये फंक्शन ऑलरेडी है, तो ये i है, इसको 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे i से, तो क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट होगा। तो मान लीजिए हम 90 डिग्री को सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो होगा वो जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस रोटेटेड हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, वो इस तरह से रोटेटेड हो जाएगा, दिस विल रोटेट समथिंग लाइक दिस। तो आप इस बात को विजुअलाइज करिए कि जब ये फंक्शन है तो उसका वैल्यू ये आ रहा, और जब i से सिंपल i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आप पहले भी पढ़ रहे हैं, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मतलब रियल एक्सिस के बाद इमेजिनरी एक्सिस का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा। तो ये तो पोजीशन का रहा। यदि हम इसी बात को मोमेंटम से दिखाएं कि मोमेंटम वेक्टर में क्या होगा, तो मोमेंटम में मोमेंटम ऑपरेटर के साथ यदि कुछ पॉइंट्स को ले लें, तो मोमेंटम ऑपरेटर में वी सी P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। अब एक ब्रीफ में ये कहें कि d ऑफ dx क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर। यदि डिफरेंशियल ऑपरेटर e रेज़ टू द पावर x पे ऑपरेट करे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 e रेज़ टू द पावर x, 1 e रेज़ टू द पावर x। तो ये जो 1 हो गया दैट इज यूनिट, ये जो 1 हो गया दैट इज यूनिट, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस आइगन वैल्यू इज 1, आइगन वैल्यू इज 1। तो ये ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दिस इज आइगन फंक्शन, दिस इज आइगन वैल्यू एंड दे गिव द आइगन function again. So there is no change in eigen function. So the operator has unit value of the operation. अब यदि हम ये ले लें, P ऑपरेट कर रहा है एक फंक्शन पे and this value is P0 psi। अब ये psi की फंक्शन क्या है, मान लीजिए psi is something this 2 pi h क्रॉस, ये एक फंक्शन है 2 pi h क्रॉस इंटू e रेज़ टू द पावर i h क्रॉस p0 x, ये एक वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन पर p ऑपरेट कर रहा है, p ऑपरेट करने का मतलब माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑफ डेल एक्स, है ना। तो क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट है अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस ये आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आई एच क्रॉस p0 e रेज़ टू द पावर i h क्रॉस p0 x। ये तो यू सी कि व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस h क्रॉस यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस आई इंटू आई, तो माइनस आई स्क्वायर p0 अंडर रूट 2 पाई h क्रॉस इंटू e रेज़ टू द पावर i h क्रॉस p0 x, और i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया। तो दिस इज p0 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई h क्रॉस e रेज़ टू द पावर i h क्रॉस p0 x, ये। सो दिस इज नथिंग बट p0 psi,
This is nothing but P0 psi, momentum operator. So what we find, this capital P psi is equal to this small p0 psi. So this is operator, this is operator, and this is wave function. Wave function, yeah, you can say eigen wave function. This is eigen value, and here it is eigen function. This is eigen function. अब जो पहले हम लोगों ने बेसिस की बात किया, उस बेसिस के लिए ऑन वेव फंक्शन को हम combination of the basis, combination of basis. कौन सा बेसिस है? डेल्टा x माइनस x0, ये बेसिस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? यू सी दिस इज डेल्टा x माइनस x0, ये बेसिस है. कहां पे बेसिस है? ऑफ साई 0 का बेसिस है. और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू dx0, then this is psi of x. This is psi of x. तो ये एक वेव फंक्शन हो गया. अब इसी वेव फंक्शन को यदि हम दूसरे फॉर्मेट्स में, उस फॉर्मेट में हम अभी बहुत ज्यादा नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह से केट नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहां पर दिस पार्ट इज नथिंग बट इट इज द बेसिस. इट इज द बेसिस. और मोमेंटम के लिए, ये तो पोजीशन के लिए हो गया, दिस इज फॉर पोजीशन, है ना. मोमेंटम के लिए जो अभी हमने मोमेंटम के बात किया है कि जो वेव फंक्शन है वो क्या है? 2 पाई h क्रॉस e रेज टू द पावर i h क्रॉस p0x, ये वेव फंक्शन है. इस वेव फंक्शन पर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू d ऑफ p0. सो ये हो जाएगा मोमेंटम वेव ऑफ x. दिस इज द मोमेंटम वेव ऑफ x. और इसी को यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो a p0, दिस इज p0 ऑफ dp0. तो एक्सप्रेशन थोड़ा हमारा आसान हो जाता है इस तरह के नोटेशन को फॉलो करने से. अब बार बार जो हम लोग इस बात को कहते हैं कि ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ये पोजीशन ऑपरेटर है, तो ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद जो आइगन वैल्यू मिलता है ना, जो आइगन वैल्यू मिलता है, वो आइगन वैल्यू को हम जो कहते हैं ये और कुछ नहीं है बट इट इज डायनामिक, इट इज डायनामिक वेरिएबल. इट इज डायनामिक वेरिएबल. और डायनामिक वेरिएबल जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेबल. वो डायनामिक वेरिएबल क्या है? ऑब्जर्वेबल. मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल ए ऑब्जर्व करें, कोई एक्सपेरिमेंट किए और उसका रिजल्ट आया, तो उसके रिजल्ट आ गया, तो इसके लिए जो ऑपरेटर है ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हो रहा है, तो दिस इज स्मॉल ए एंड हियर इट इज साई. तो आइगन स्टेट है ना, आइगन स्टेट, दीज आर द आइगन फंक्शन, है ना, ऑब्लिक स्टेट, आइगन स्टेट, ये डायनेमिक वेरिएबल आइगन वैल्यू, और ये आई ऑपरेटर, दिस इज योर ऑपरेटर एंड हियर इट इज द वेव फंक्शन. तो हम अब जैसे ये फिजिक्स की भाषा में हम बात करें कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए मल्टीमीटर है और उससे हम मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल. तो पोटेंशियल जब मेजर कर रहे हैं, जो दो पॉइंट के बीच में हम पॉइंट टच करते हैं, तो हमारे पास नीडल का एक डिफ्लेक्शन आता है. अब वो जो डिफ्लेक्शन आता है
वो जो डिफ्लेक्शन आता है वो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेबल, और वो ऑब्जर्वेबल डेफिनेशन जो है वो हमारा आइगन वैल्यू है ना, इस केस में आइगन वैल्यू। तो अभी हमने बात किया आइगन फंक्शन के बारे में, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। उसी तरह से जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे मान लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले हम एडिशन की बात करें तो दो ऑपरेटर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इन दो ऑपरेटर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा एडिशन में, ए प्लस बी, और ये कंबाइंड रूप से किसी वेव पर ये ऑपरेट करें तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर साई पे और बी ऑपरेटर फिर साई पे ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट काइंड ऑफ द वैल्यू, सो इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे, ए बी ऑपरेटर है, ए और बी, ये मल्टीप्लाई होकर के साई पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ए पहले बी ये ऑपरेट करेंगे साई पे, और फिर जाकर के ए जो ऑपरेटर है वो बी साई के ऊपर जो आएगा उस पर ये ऑपरेट करेगा। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन इसके केस में बनता है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं पोजीशन एक्स के लिए और मोमेंटम ऑपरेटर पी के लिए, एक्स और पी के लिए। तो एक्स और पी दो ऑपरेटर सम करें, हालांकि ये सम नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए ए और बी ये दो कोफिशिएंट्स हो गए, ये कोफिशिएंट मिल करके इसको डायमेंशनली सेम कर देंगे और फिर ये ऑपरेट करेंगे साई पर। साई पे जो ऑपरेट होगा तो क्या होगा, ए एक्स साई प्लस बी पी साई, बीपी साई। ये पहला केस क्या होगा एडिशन के लिए। दूसरा केस यदि मल्टीप्लीकेशन का ले लें, दूसरा केस यदि ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन का ले लें तो एक्स पी है और ये साई पे ऑपरेट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स पी साई, एक्स पी साई का मतलब क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये पी है एंड देन इट इज साई। सो व्हाट इज दिस, माइनस आई एच क्रॉस डेल एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये होगा। लेकिन यदि इसके ऑर्डर बदल दें, पी एक्स आई, तो पी एक्स आई के लिए बात करते हैं तो दिस इज पी एक्स आई, ये हो गया पी एक्स आई, और पी ऑपरेटर यदि इस पे लगाते हैं तो आई एच क्रॉस डेल ऑफ डेल एक्स एक्स साई। अब यहां पे स्थिति बदल गया, यहां पे दो फंक्शन हो गया एक्स और साई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, डिफरेंशियल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, तो ये माइनस आई एच क्रॉस हो गया, और ब्रैकेट में पहले क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू साई प्लस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो गया। और डेल एक्स बाई डेल साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस साई प्लस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा। सो दिस इज माइनस आई एच क्रॉस साई प्लस क्या होगा, आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, मतलब ये पार्ट हो जाएगी, है ना, ये पार्ट होगा। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ये एक्स पी ऑफ साई हो जाएगा, एक्स पी ऑफ साई हो जाएगा।
अब इससे फायदा क्या हुआ, यदि हम इसको इक्वेट करें, इफ वी इक्वेट दिस वन कि पी एक्स psi is equal to minus I H cross psi plus XP psi, XP psi. तो R PX psi minus XP psi is equal to minus IH cross psi. So this is Px minus Xp psi is equal to minus IH cross psi. Yeah, this is Px minus Xp is equal to minus IH cross. Minus IH cross. Minus IH cross होने के कारण this can be written as इसको आप थोड़ा चेंज भी कर ले तो xp minus px, xp minus px is IH cross, माइनस साइन हट जाएगा, ऑर्डर बदल गया. सो दिस कैन बी xp is IH cross. IH cross का मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब कि ये जो दोनों हो गए ये नॉन कम्यूटेटर हो गए. दिस आर नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर्स, नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर्स. तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी. देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी. अब हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू एच अपॉन एच क्रॉस बाई 2. ये हमने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पर आ गया. और यदि कम्यूटेटर होता तो क्या होता, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कम्यूटेटर, इसको बाद में हम डिटेल करेंगे. लेकिन कम्यूटेटर के लिए यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में कम्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, ये वैल्यू 0 होना चाहिए. अब आप थोड़ा सा इसके बेसिक्स पे आइए कि व्हाट इज कम्यूटेटर. कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं. आपने इस तरह के एक डायग्राम पढ़ा होगा. ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रही है और उसमें ही ये रोटेट करे. दिस कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड हियर इट इज कॉइल, दिस कॉइल, और रोटेट करे, ये रोटेट करे तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. दिस विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट. और इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा उसके दो आउटकम हो गए, एक एसी और दूसरा डीसी, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर. तो एसी क्या होगा, ये दिस इज प्लस माइनस प्लस, दिस इज टाइम एंड हियर इट इज V0, पोटेंशियल या करंट, V0 ओवर करंट जो भी हो. डीसी कब होगा, जब ये ऐसे हो, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोटेंशियल या वोल्टेज. तो डीसी कब मिलेगा, देयर इज अ स्लिप रिंग, देयर इज अ स्लिप रिंग. स्लिप रिंग ये इस तरह का यदि स्लिप रिंग हम दो लगा दें सर्किट में, देयर इज अ स्लिप रिंग, तो हमको डीसी मिलने लगता है. एंड देन दिस स्लिप रिंग इज नोन एज कम्यूटेटर. दिस स्लिप रिंग इज नोन एज कम्यूटेटर. तो जो कुछ भी एक साइकिल में है दूसरे साइकिल में वो पूरा ट्रांसफर कर देता है.
पूरा ट्रांसफर कर देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज जीरो. ऑर्डर चाहे जो भी हो, इट इज जीरो. तो मोमेंटम पोजीशन ट्रांसफर नहीं करता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं करता. देयर इज सम वैल्यू आई एच क्रॉस. दिस इज आई एच क्रॉस. So that finite value will be under the study of uncertainty, जिसके वजह से वो चीजें बनी रहती. लेकिन एक और इसी में इंपॉर्टेंट केस हम देखें. वो इंपॉर्टेंट केस क्या है? If we take the example of momentum operator, मोमेंटम ऑपरेटर P और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K, काइनेटिक एनर्जी K. तो मोमेंटम ऑपरेटर को जब हम लिखते हैं, सो इट इज माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑफ डेल एक्स. दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर. और काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को जब हम लिखते हैं तो ये है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर. कहां से ये आता है? ये आता है p स्क्वायर बाई 2m से. p स्क्वायर बाई 2m से. कहां से, कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई दिस m, numerator and denominator. So this is m. We can take this. Okay. This is m upon m by 2v square. So this is m. This is m square, v square by 2m, and this is p square by 2m. This is your k. So from this square, if you square up this operator, then you have the energy operator. You take the Kp. What is Kp? K of P minus P of K of psi. So what happened? Here it is K, and this is P psi minus P. This is K psi. This is P and K psi. So what happened? Minus I H cross del of del x, and here it is, this is minus H cross square upon 2m into del square psi by del x square. Del square minus del x square. This is P psi. Minus, here it is minus of this minus h square upon 2m del square by del x square, and here minus I h cross del psi by del x, del psi by del x. So what this value? This minus and this minus, this minus is plus. So I h cube, h square h cube, and this delta, you have to multiply delta. Again, this is 3 delta x cube minus. You see, this minus is plus, and here it is minus is minus. So this is minus I h cube upon 2m. Here it is 2m. This is 2m as well. And this delta 2 upon delta x square operating over there. So delta 2, delta 3, del x3. So this function value is seen, and that's why it is 0. That's why it is 0. So this k and p value is 0. This value is 0, means it is commutator. It is commutator. Momentum vector and energy vector are commutator. Means whatever the energy is, the whole energy is transferred into the momentum, or whole momentum is transferred to the energy. So eigenstate of momentum
eigenstate of energy. And therefore, if you see the wave function psi of x is 1 upon under root 2 pi h cross e raised to the power I upon h cross p0 x, then this is p tends to p0, so it is energy eigenstate of momentum, and this p0 square upon 2m is k, that is eigenstate of energy, kinetic energy. So in this way, we can see that there are some operators. Those operators are commutable. Those operators are commutable. तो इसी तरह से कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. जैसे आप थर्ड ईयर में हैं और आप यदि जैम की तैयारी सोच रहे होंगे तो उसमें से कई सवाल इससे पूछे जाते हैं. उन कुछ सवालों को यदि हम देखें, है ना, जैम में जो पूछे गए सवाल है उनमें से कुछ सवाल देखें तो चलिए कुछ सवाल हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का. चलिए, इफ द आइगन वैल्यू and eigenfunction, eigenvalue and eigenfunction of this operator d of dx are I and e raised to the power ix. E raised to the power ix. Then calculate the eigenvalue and eigenfunction for the operator minus 2i d of dx, minus 2i d of dx. Solution. If A be the operator, and psi be the eigenfunction, then the eigenequation is A psi is equal to small a eigenvalue into psi. See, this is equation 1. Now it is given that is A is d of dx. A is d of dx. This one is. And wave function is ix. This wave function is ix, as it is ix. So this is if you differentiate, then it is I e raised to the power
ix, e raised to the power ix. So this is eigenvalue. This is eigenvalue. That is eigenvalue. Here it is given. So eigenvalue and eigenfunction of the operator d of dx operator का ये दिया हुआ है. तो हमको बताइए कि then find प्रॉब्लम अब आता है कि find कि -2i d of dx -2i d of dx को यदि हम यूज करें किसके ऊपर e raised to the power ix पर, e raised to the power ix पर, तो क्या होगा? What will be the eigenvalue and eigenfunction? So ठीक है, -2i और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज -i ix, ये ix. So this is -2i into I square e raised to the power ix. So minus I square, this I square is -1. So minus I square is equal to 1. So this is 2 e raised to the power ix, 2ix. So what is the eigenvalue? A dash psi is equal to small a dash psi. This is eigenvalue equation. And from this eigenvalue equation, a dash is equal to 2. A dash is equal to 2. And this is the answer. And now specifically it is real. It is real. So what we find, what we conclude, इस प्रॉब्लम को देख करके कि d by dx जो है वो आइगन वैल्यू i दिया इमेजिनरी, और -2i d by dx जो है वो आइगन वैल्यू रियल दिया. यदि रियल वैल्यू है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा वैल्यू है वो ऑब्जर्वेबल है, वो वैल्यू जो है ऑब्जर्वेबल है और उसको एक्सपेरिमेंटली हम उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को एक एक करके देख लें. शॉर्ट में चलते हैं. मान लीजिए ऑपरेटर है ए ऑपरेटर है d2 by dx स्क्वायर और वेव फंक्शन है e raised to the power minus ix स्क्वायर, a raised to the power minus ix स्क्वायर. तो a psi ऑपरेटर psi यदि लगा दें तो what we find, this is d2 of dx square e raised to the power minus ix. So first double differentiation है, so let us take first single differentiation. तो e to the power minus ix square ऐसा साइन. हाँ yes i स्क्वायर. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई तो होगा और x स्क्वायर का क्या होगा? 2x और e रेज टू द पावर माइनस आई एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए. तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई 2x, यही चीज फिर आ जाएगा आपका ना. लेकिन इसमें एक चीज और आ गया, वो x हो गया. इसमें एक फंक्शन और बढ़ गया. वो क्या फंक्शन हो गया कि ये माइनस आई 2i हो जाएगा और देन x और ये दो फंक्शन है. तो ये dx by d में माइनस आई एक्स स्क्वायर ये हो गया और प्लस x और ये हो गया माइनस आई 2x e raised to the power i x square. यही इसका इंपॉर्टेंस है. -2i e raised to the power I x square minus, and this is the minus, so it is minus, and here it is minus I or x and x. So minus I 2x square minus I 2x square e raised to the power I minus this is square. So you take this one is common. This is -2i 1 minus 2i x square e raised to the power minus I x square. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर
तो दिस इज -2i, हियर इट इज 1 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 to 4 हो गया, और i स्क्वायर माइनस i हो जाएगा, तो दिस इज 4x स्क्वायर e raised to the power minus I x square. So the value is, वहाँ पे भी सब माइनस होगा सर। yes, सर वहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, i स्क्वायर -1 हाँ, -4 स्क्वायर होगा। हाँ, माइनस साइन इज देयर, उसको माइनस फिर कॉमन, चलो माइनस ही कर देते हैं अभी। सर माइनस आपने सर अंदर लिया है। हाँ, माइनस अंदर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो -2 कॉमन ले लें, ठीक है, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर e raised to the power minus I x square, है ना, this is a psi, this is a psi. So this value is, what is psi? Here it is the wave function, and this is your a. So eigenvalue is, the eigenvalue a is equal to -2i plus 2x square. This is your answer. तो ये प्रॉब्लम जैम में पूछा गया है। एक और प्रॉब्लम जो जैम में पूछा गया है वो थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम मैं अलग से बता दूंगा कि किस तरह से वो प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन जो दूसरा एग्जाम का प्रॉब्लम आया है ये थोड़ा सा बहुत आसान है, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ऐसे पूछा गया है कि वो थोड़ा सा अलग लगता है कि फाइंड आउट the eigenvalue of Laplace operator. तो Laplace operator क्या होता है? Laplace operator on the wave cos ax into cos bx into cos cx, है ना, सॉल्यूशन। तो पहला जैसे आपने कहा कि व्हाट इज लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लास ऑपरेटर्स कोई बताएगा क्या होता है, व्हाट इज द लाप्लास ऑपरेटर? दिस इज सिंबलाइज्ड एज डेल स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर इज डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर del square del y square plus del square by del z square, ये लॉपलास ऑपरेटर। तो क्या है, जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर का डॉट मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो लॉपलास ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगा, व्हाट द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू अल्फा साई, अल्फा इज आइगन वैल्यू। तो हमको अल्फा का मान निकालना है, व्हाट विल बी द अल्फा, इसकी मान निकालना है। तो इसके लिए डेल स्क्वायर साई को हम लिखेंगे, दिस इज डेल स्क्वायर क्या है, यहां से ये एक्सप्रेशन, तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब वेव फंक्शन क्या है, कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू कॉस सी एक्स, ये है। तो अब इसमें आप देखिए x के साथ 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये लंबा हो गया, x के मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 3, इस y के साथ 0, z के साथ 0 हो जाए, है ना। तो आपको केवल एक फंक्शन आएगा और वो फंक्शन हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, और उसको यहाँ पे cos अल्फा एक्स cos
दिस इज डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना, और दिस इज कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू कॉस सी एक्स, है ना, ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y और z का कोई फंक्शन यहाँ है नहीं, तो उसके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये ट्रीट कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब इसको x के रूप में पहले डिफरेंशियल करेंगे, तो डेल ऑफ डेल एक्स करिए और फिर डेल ऑफ डेल एक्स करिए, कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स कॉस सी एक्स, ठीक है, और जो फिर आएगा उसको फिर dx से आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई कर दे। क्या मॉडिफाई कर दे? ये वेव फंक्शन जो होगा, ये वेव फंक्शन क्या है? साई एक्स का वेव फंक्शन, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ साई। हम साई एक्स के नहीं, साई एक्स वाई जेड का वेव फंक्शन करें, तो उसमें कुछ करना खास नहीं है। कॉस अल्फा सॉरी ए कॉस ए एक्स, सर 110 से दूसरी क्लासेस सर इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ बस 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 खत्म कर रहे हैं। ओके कॉस बी एक्स और कॉस ये बी वाई कॉस सी जेड, है ना, ये कर दिए। मैंने एक्स का भी आ गया यहाँ पे, वाई का भी आ गया और जेड का भी आ गया, जेड का भी आ गया। और अब इसके ऊपर जब डेल ऑपरेटर साई स्क्वायर लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ए साई आएगी, अरे अल्फा साई आएगी, अल्फा इज द आइगन वैल्यू, तो वो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू साई एक्स वाई जेड। तो इस केस में जो आंसर है वो बहुत सिंपल आंसर हो गया। क्या सिंपल आंसर हो गया? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर यू हैव टू फाइंड द आंसर, यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब क्या है कि यदि वेव फंक्शन इस फॉर्म में कर दें तो वो क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और इस वेव फंक्शन में है तो ये हो जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप का ये हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ आप लोगों को होम असाइनमेंट हम दे रहे हैं जो आप करके दीजिएगा, और वो सिंपल इक्वेशंस हैं। एग्जाम्पल्स ऑब्लिक प्रॉब्लम, पहला ये है कि ऑपरेटर ए दिया है, दिस ऑपरेटर इज डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d by dx plus 3 and the wave function is e raised to the power alpha x or psi e raised to the minus alpha x, है ना। ऑपरेटर दोनों के ऊपर काम करेगा, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको बताइए कि क्या हो रहा है इसकी वैल्यू। दूसरा px ऑपरेटर हो, ऑपरेटर इज px, wave function is e raised to the power ikx, this wave function is ikx, so what will be the eigenvalue, है ना, find out the eigenvalue। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफ गिवन केसेस, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया था जो जैम में पूछे गए हैं, है ना, IITs के जो एंट्रेंस है उसमें पूछे गए हैं, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कुछ और भी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का अभी हम क्या है लैंग्वेज सीख रहे हैं, अभी उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहीं तक, है ना। और नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और चीजों को एक्सप्रेस करेंगे।
और वो है पार्टिकल इन ए बॉक्स. तो दैट इज वेरी फेमस प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट पार्टिकल इन द बॉक्स. हेलो सर. हाँ सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कर दिए हैं एक्स से, वो कैसे हो गया समझ नहीं आया. नहीं, वो नया एक प्रॉब्लम हम देने की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा सर, ठीक ठीक. हाँ